ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਹੱਥ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟਿਆ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਯਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸਮਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਦ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਬੱਚਦੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਭੱਜਦੇ ਸੀ, ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ये बच्ची मासूम बच्ची बता रही है कि हमें खाने के अंदर थूक डाल कर दिया जाता था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, आज मैं फूल नगर में मौजूद हूं, जहां पे एक मिसबा रहा करती थी। मैंने इसलिए अल्फाज इस्तेमाल किए क्योंकि एक अमीर घराने की औरत उसको अपने घर काम करने के लिए लेकर गई, लेकिन जब मिसबा अपने गाँव वापस आई तो उसकी लाश वापस आई। ये वो तालाब है जहाँ पे वो अमीर औरत मिसबा की लाश को फेंक कर चली गई थी, और मेरे इस जानब मिसबा का घर है जहाँ पे मिसबा रहा करती थी। मिसबा की उम्र 8 साल थी। मिसबा के कान काट दिए गए, मिसबा की उंगलियाँ काट दी गई, मिसबा के पेट पे कट के निशानात थे। मिसबा के साथ क्या क्या हुआ इन 3 माह में, सब मामला उसकी फैमिली से ही जानने की कोशिश करेंगे। आइए मेरे साथ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये बच्ची सबा जो मिसबा के साथ वहाँ पर काम किया करती थी, इसके भी जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। ये आगे चलकर आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। माँ जी, मैनू ये दसो, मिसबा किन्ने अरसे तो उत्थे काम करन लई गई सी? 5 महीने तो कि वो लोग कौन सी? कोई पता नहीं कौन सन। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਮਿਸਬਾ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਮਿਸਬਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਮਿਲ ਤੇ ਬੀਬੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਲਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡਣੇ, ਬੱਚੇ ਖਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਬੱਚਾ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਤੇ ਬਾਜੀ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਪੜਾਵੇਗੀ ਵੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਮਿਸਬਾ ਨੂੰ? ਮਿਸਬਾ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇੱਥੋਂ 3000 ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਆਖੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮਿਸਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਬਤਾ ਸਾਡਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਿਸਬਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਮਿਸਬਾ ਨਾਲ ਰਵੱਈਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਏ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲਾ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਅੰਦਰ ਤਰਲੇ ਲੈਣੇ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਮਿਸਬਾ ਦੀ ਉਮਰ ਕੀ ਸੀ? 8 ਸਾਲ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੱਚਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ, ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਪੜ੍ਹ ਜਾਏਗੀ, ਕੁਝ ਜੇਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਪੜਾਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਮਿਸਬਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ? ਇੱਥੇ ਲਾਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਤਲਾਅ ਤੇ। ਤਲਾਬ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਲਾਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਸੀ? ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਕੈਸੀ ਹੈਗੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਕੜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਤ ਹੈਗੇ ਸੀ? ਨਿਸ਼ਾਨ ਐਸੇ ਕੁਝ ਗਹਿਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਨੌ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਂਝ ਜਿਸਮ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਗਾਲਾਂ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਹੱਥ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਹੱਥ ਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੱਟਿਆ, ਕਿਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਿਸਬਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਈ ਗੱਲਾਂ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਂਦੀ ਸੀ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 2-3 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ 2-4 ਦਿਨ ਕਰਦੀ ਪਈ, ਆਪੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਮਿਸਬਾ ਜੀ? ਮਿਸਬਾ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਤਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ? ਯਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਇਸਮਾਲ ਭਾਈ ਨੇ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੀ ਤੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜੀ ਤੋਂ ਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
जिस तरीके मेरी धी मरी सिसक सिसक के वो भी इसे तरीके सिसक सिसक के मरे। कौन लोग सी जिन्हें तशद्दुद करते रहंदे सी मिसबा ते? उस्मान सी। उस बंदे दा नाम उस्मान है। हाँ उस्मान है। वो ही अजे तक फड़ीजा भी नहीं। क्यों नहीं पीछा? पता नहीं, ये नहीं पता क्यों नहीं फड़ी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस ने भी कार्रवाई की, ਇਹਨੇ भी नहीं की। सर साहब ने साडे ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਇਹ ਨੇ। ਮਾਂ ਜੀ ਮਿਸਬਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਯਾਦ। ਇਹ ਹਰੀ ਬਚਪਨ ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਯਾਦ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੱਚਦੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਭੱਜਦੀ ਸੀ, ਖੇਡਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ लगता। मेरे साथ वो बच्ची भी मौजूद है जो मिसबा के साथ ही हुआ करती थी, लेकिन इसको वहाँ जाकर अलग कर दिया गया। बेटा कैसी हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये मिसबा कहाँ पे काम करती थी? उसकी माँ के पास करती थी। वो उसका नाम क्या था? उसकी माँ का नाम नहीं आता मुझे। अच्छा, तो आप कहाँ पे काम करती थी? उस्मान के घर। उस्मान के घर। तो ये मिसबा को मारता कौन था? पता नहीं, मुझे नहीं पता उसका। आपको भी मारते थे? हाँ जी। आपको क्यों मारते थे? पता नहीं, जब खाना देते तो उनके फेंक कर देते थे। अच्छा, खाने में थूक फेंक कर देते थे आपको? तो आपने कभी उनको बोला नहीं कि मैंने काम नहीं करना, मैंने छोड़ जाना है? कहा था मैंने। तो फिर कहते नहीं, तूने काम करने से काम। जबरदस्ती करते थे? हाँ जी। आपको मारते भी थे? हाँ जी। कितना मारते थे आपको? डंडा से छुरियों से। छुरियों से भी मारते थे? तो आपको रोना नहीं आता था? आता था। तो उनको कभी नहीं एहसास हुआ कि छोड़ दें? उन लोगों को कभी भी नहीं हुआ था। कभी उन पे गुस्सा आया आपको? नहीं आया तो बहुत होते, रोज मारते थे। रोज मारते थे? दिन रात? हाँ जी। उसका बंदा शरारतां दसती है ना, आधे बंदे ने बेल्टों से मारते हैं हमें। बेल्टों से मारती थी? उसका बंदा बेल्टों से मारते हैं। अच्छा, उसके बच्चे थे? हाँ जी, 2 थे। 2 बच्चे थे उसके? वो उनकी उम्रें क्या थी? मुझे नहीं उनकी उम्र पता। छोटे छोटे बच्चे थे? नाखूनों से मारते थे। आपको? हाँ जी, एक टाइम रोटी देते थे। एक टाइम रोटी देते थे, उसमें भी थूक डालते थे? तो आप वो थूक वाली रोटी खा लेती थी? हमने नहीं खाने होते। भूखी रहती थी? सजा होनी चाहिए ना? हाँ जी। ये मासूम बच्ची जिसके जिस्म पे तशद्दुद के निशानात हैं, जो आप फोटोज़ में भी देख सकते हैं। बाकी का मामला यहाँ पे एक मोहतरम मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये कानूनी कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। सर कैसे हैं? जी भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बच्ची के साथ आपका क्या ताल्लुक है? शुक्र। ये हमारे पास बैठे हुए हैं, काम भी करते हैं, भट्टे पे काम करते हैं, हम ही इनकी देखभाल करते हैं। सर मुझे ये बताएं, क्या कानूनी कार्रवाई हो चुकी है अभी तक? फर्स्ट टाइम पुलिस यहाँ आई, मौका देखा, मौका देखने के बाद नक्शा बनाया उन्होंने और FIR दर्ज हुई है और मिसबा को उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज उम्मीद है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मिल जाएगी, उसके बाद जो है उस्मान मरकज़ी मुलज़म है, वो अभी तक बेले पे है, उसने अबूरी बेल करवाई हुई है, उसकी 11 तारीख है मेरे ख्याल में। उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। जब यहाँ पे लाश आई थी तो लाश की हालत कैसी थी? लाश जब आई मैंने देखा तो लाश बहुत बिल्कुल खुश्क हुई पड़ी थी, जैसे वो 12-13 घंटे से उसकी डेथ हुई हो। कोई यहाँ पे मौजूद नहीं था जब वो लोग आए यहाँ पे? वो ये मौजूद थे, घर वाले मौजूद थे, इनको थमाकर वो वहाँ रोड पे हाँ जी वो वापस चले गए हैं। इनको तो पता ही नहीं था कि इसकी डेथ हुई, इन्होंने तो समझा कि बीमार है। जब इन्होंने देखा उसको तो चेहरा देखा तो वो खुश्क हुआ पड़ा था, वो अकड़ी हुई थी। तो बाद में इन्होंने मुझे कॉल की, मैं यहाँ पर आया, मैंने देखा, मैंने फिर फ़ौरन पुलिस को कॉल किया है कि ये वाक़या हो गया है। SHO साहब और दीगर अमला यहाँ मौके पे आया, उन्होंने कोऑपरेट किया है, उस वक्त तो बहुत कोऑपरेट किया है, अभी भी कर रहे हैं वो। उम्मीद है कि इंसाफ मिल जाएगा? जी उम्मीद तो है इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन ये बड़े आदमी हैं, पता नहीं क्या खेल खेलेंगे। अभी तक तो वो मरकज़ी मुलज़म जब गिरफ़्तार होगा फिर पता चलेगा और फिर असल हक़ाइक़ भी सामने आएंगे कि क्या हुआ मिसबा के साथ, किस तरह उसका मर्डर हुआ। अभी तक तो वो गिरफ़्तार नहीं हो सका उस्मान। माँ जी कुछ आखिर च कहना चाहोगे मिसबा ਲਈ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਨ ਲਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਤਸੀਹੇ ਲੈ ਲੈ ਮਰੀ ਐਵੇਂ ਵੀ ਤਸੀਹੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਮਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। बिल्कुल जी, आपने पूरी कहानी सुनी कि किस तरह से मिसबा के साथ रवैया इख्तियार किया गया, उसको यहाँ से ले जाया गया और फिर उस पर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। हम किस मुआशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, हमें कैसी तरबियत मिलती है, हमारे माँ बाप हमारी तरबियत कैसे करते हैं, ये बच्ची बता रही है, मैं नहीं कह रहा। ये बच्ची, मासूम बच्ची बता रही है कि हमें खाने के अंदर थूक डाल कर दिया जाता था। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक लानत तो बनती है, यहाँ पे जुल्म खत्म हो जाता है। इससे आगे क्या जुल्म होगा कि एक मासूम बच्चे जिनको खाने के अंदर थूक डाल कर देते थे, उनके माँ बाप ने उनकी क्या तरबियत की होगी। अफसोस होता है। वैसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि यहाँ पे मिसबा को ज़रूर इंसाफ मिलेगा। शायद बहुत सी मिसबाएँ जो अपनी जानें खो बैठती हैं, जिनके बचपन 8, 9, 10 साल की उम्र में ख़त्म हो जाते हैं और फिर बाद में भी उनको इंसाफ नहीं मिल पाता। मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।